issue which not only need immediate attention of the government but also welfare organization and civil society. I was always very much concerned about the sufferings of women. In 2018, when we came to presidency, I wanted to work for women in Pakistan. Especially, I always realized that beside many other diseases, the death rate of breast cancer is too high in our country, and Pakistan at the top among other Asian countries in this regard. Out of 9 women is suffering from this fatal disease, and the main reason for the highest death rate is late detection of this disease and lack of awareness in our society, as it is a taboo. No one can talk about this disease due to sociological and cultural mindset of the people. It is need of time to raise awareness about signs and symptoms of this disease and result of this late detection. I know many welfare organizations are working on this subject, but my message to every woman is that cancer is a curable disease if detected in early stages. As you all know, our doctors are sitting and they all say, अगर ये जल्दी इलाज डिटेक्ट हो जाए तो इसका इलाज है. तो मैं सब अपनी बहनों को यही कहती हूँ और बार बार हम यही एम्फसाइज कर रहे हैं कि प्लीज़ नथिंग टू शाय, नॉट टू गेट अफ्रेड. आप निकलें एंड डिस्कस विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स. Since it was my mission, so I gathered few of my friends and doctors, went to Shaukat Khanum Hospital also, and told them that I wanted to work on awareness of breast cancer in our women. We are not doing any fundraising or anything, just awareness. क्योंकि देखिए यही awareness and taboo is a problem of our country. इसी को हमें तोड़ना है. इस taboo को we have to do. अब हर कोने कोने में मेरी बहनें, मेरी फ्रेंड्स और हमारी सोसाइटी के लोग सब जा के सेमिनार्स कर रहे हैं. एवरीथिंग दे आर डूइंग जस्ट टू ब्रेक दिस टैबू, ताकि लोगों की हम अपनी बहनों की जिंदगियां बचा सकें. We started society, NGOs and other charitable individuals. I also requested Dr. Faisal Sultan, the health minister, who is he's a minister, and we have requested them to please help us in this issue. And they have decided to give a maximum effort for this fatal disease regarding provision of facilities for screening, mammography and treatment of breast cancer in government hospitals. Here I would like to share that on our request to PTA, the awareness message for the general public has been launched during the month of October. What we realized in COVID, हमारे cell phones पे they have repeated about COVID, तो वो लोगों के जहन में ज़्यादा बात गई. तो only for October month we have requested them, और आप लोग सब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि ये हो रहा है. तो just to give awareness. In hospitals, federal and provincial areas, we have arranged seminars and tried to give an awareness about self-examination. Self-examination is the key. डॉक्टर्स आपको ज़्यादा गाइड करेंगे, बट आई फील कि हम लोग इतने हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं. हम सबसे पहले स्क्रीनिंग पे, सेल्फ स्क्रीनिंग पे हमें एम्फसाइज करना चाहिए, ताकि हम बहनें खुद हर महीने, एवरी मंथ वी हैव टू सी. अगर कोई चेंजेस कुछ हो तो आप फौरन डॉक्टर्स के पास जाएं. Screening, mammography and about result of this fatal disease.
I'm so happy to see the result of our efforts that women are so motivated and now they didn't hesitate to discuss about this disease. I am trying to visit many other cities of Pakistan for this noble cause. No doubt its treatment is so expensive and not affordable for the poor community. I am trying with the help of NGOs, welfare organizations to provide facilities to underprivileged ladies. And we were trying also and encouraging government also to give some facilities. यहाँ Dr. Aisha बैठी हैं, she will tell you about the PIMS कि यहाँ पे बहुत सारी facilities, almost everything is free. जहाँ तक मुझे for those who can't afford. In the end, wanted to give my message to my बहनें, मेरी बहनें, बेटियाँ खौफज़दा ना हो, इंशाअल्लाह बीमारी हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम याद रखेंगे. It is a curable disease if detected at an early stage, and we can save many precious lives of creating awareness in women. Their families' support and the role of society. I would also like to thank the media community. मैं हर बार आके मीडिया को ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ because मीडिया का जो रोल है it's very important and thank you so much कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस पे आ रहा है और I'm very thankful to all the media and especially televisions पे they are wearing a pink ribbons. It's nothing, pink ribbons से कुछ होगा नहीं, but just to give awareness. Beyond doubt are working with me and the efforts are really appreciated. And thank you so much. May Allah always with you and with us. Pakistan, Paindabad. Ladies and gentlemen, especially the ones who are watching us live right now, I would request you to do your little bit. जिस तरह बेगम साहिबा ने अभी कहा कि हम मीडिया पे when we wear this pink ribbon, it is our humble effort in making sure that people find out about it. तो वो तमाम लोग जो इस वक्त हमें Facebook पे, YouTube पे या सरीना के socials पे या मेरे social media pages पे देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस लिंक को शेयर ज़रूर करें. आपकी जितनी फ्रेंड लिस्ट है, आपको नहीं पता कि you being a conversation starter, आपकी कौन सी बात किसके दिल पे जाके लग जाए. So make sure that you are live right now. You can send us your questions as well and be a part of this campaign. Ladies and gentlemen, taking this program forward, we now like to dive into an interactive panel discussion. For this, as I have already said, we have two amazing experts who are here with us and who are going to debunk a lot of misinformation around this disease. So without any further ado, please join me in welcoming Dr. Aisha Ehsani. She's the head of radiology at PIMS and definitely a force to reckon with. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Aisha. The first thing that comes to mind when we speak of breast cancer is that it's a disease that impacts women. But very rarely, gentlemen, please join me in welcoming Mr. Gentlemen, thank you very much for bearing with me, who's a little bit technology challenged today. Begum Sahiba, सबसे 2 साल हुए हैं और ये टैबू ऐसा है कि हमें तोड़ने में आसानी नहीं होगी, मगर उसके बावजूद इन 2 सालों में आज जहाँ मैं देख रही हूँ तो इट्स अ बिग चेंज. हाँ, लोग एटलीस्ट डिस्कस कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग ऑन द टेलीविजन्स, हमारे टेलीफोन पे मैसेज आ रहे हैं, एटलीस्ट दे आर रेडी टू लिसन. तो मैं तो समझती हूँ यही बहुत हमारी कामयाबी है कि अगर हम इस हद तक भी पहुँच जाएंगे. और इंशाअल्लाह इसके लिए हमने काम तो आहिस्ता आहिस्ता सब कर ही रहे हैं कि हम हॉस्पिटल्स को अपने साथ मिला रहे हैं, NGOs मिल रहे हैं, डॉक्टर्स तो ऑलरेडी हमारे साथ हैं. इस स्टिग्मा को हमें तोड़ना है एंड इंशाअल्लाह वी विल
वो कामयाब होंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी उम्मीद के साथ we'd also want to take input from how the healthcare workers and the doctors are the queries changing, क्या हमारा mindset बदल रहा है या नहीं। डॉक्टर आपदा, पहले ही होता था कि जैसे ही किसी को अगर डायग्नोसिस मिली कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो उनको लगता था जिंदगी राइट ऑफ हो गई है। नाउ देयर इज नो क्योर, आई एम प्रॉब्ली काउंटिंग डेज टू डेथ। हैज दैट नीडल मूव्ड इन एनी वे? You'll have to switch it on. Ji. Sidra, thank you very much for this initiative and for having me as part of the panel. And I'm very thankful to Mrs. Samin Alvi also for everything that she's been doing for the last 2 years. Certainly, I agree with you. I think there has been an impact for sure. The impact, the real impact where we actually start to see a decrease in mortality, which means the number of people dying because of breast cancer, that's going to take a while. However, when patients come to clinic now, oftentimes we do hear them say that they've heard something on TV or they've heard or read something in the newspaper or, through social media. So based on that, I would say that definitely there has been an impact. And I think a lot of these women may not have presented as early as they have, had it not been for all these efforts that have been going on for the last few years. And when you say an early detection, Dr. Aisha, I'd like to bring this to you. कई लोगों का ख्याल होता है कि अगर वो डिटेक्ट भी कुछ करते हैं, कोई एबनॉर्मैलिटी, और इफ दे फील अ सिस्ट या कोई गुठली उनको महसूस होती है, उनका ख्याल होता है इसको छेड़ेंगे तो ये मर्ज बढ़ जाएगा। दिस इज अ बिग मिथ। व्हेन आई वाज रीडिंग थ्रू द लिस्ट ऑफ मिथ्स दैट वी हैव, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर इसको छेड़ा तो मर्ज और बिगड़ जाएगा। इसको हम इस मिसइंफॉर्मेशन को कैसे दूर करें? बिल्कुल, वेरी ट्रू सिद्रा। एक इनिशियली मैडम मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस टेलीफोनिक मैसेज से। ये एक फीडबैक आपको मैं देना चाह रही थी कि जो पहले 10 या 15 ख़वातीन आती थी, सो अभी फॉर एग्जांपल आवर प्लेस इट्स डबल ट्रिपल्ड इन नंबर, और वो सब आके ये बता रही हैं कि ये फ़ोन। सो आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल, इट्स बिन वेरी यूजफुल। जहाँ तक मिथ का ताल्लुक, बिल्कुल ये मिथ है। अगर आप उनको बायोप्सी या FNAC या उसके लिए स्पेशली कहते हैं तो वो कि जी अगर हम सुई का टेस्ट कराएंगे तो ये फैल जाएगा, कराते ही नहीं है। इवन इफ दे फाइंड आउट अबाउट द लम्प ऑन स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, विच एवर वे, वो फिर आगे बायोप्सी नहीं कराते हैं। और वो तो उसके लिए भी आई थिंक वी हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव in that aspect as well. Right. But definitely मैडम आपके यहाँ आने से and this Islamabad I think has woken up मैं ये कहना चाहूँगी because it was generally बीमार हो तो फिर आ रहे, इस तरह नहीं है। अब जो है ना स्क्रीनिंग का और वो actual concept has really started, awareness and early detection. I think awareness से ये needle move हुई है। इस discussion में throughout I would be raising some hitting questions जो शायद हो सकता है आपके और मेरे, हम जिस स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक पढ़े लिखे तबके और घराने से आप आते हैं, आप एहसास भी नहीं होता कि ये लोगों की कंसर्न्स हो सकती हैं। But that is the reason why there's such a high mortality rate when it comes to breast cancer in Pakistan. और क्योंकि हमारी आवाज़ हर जगह सुनी जा रही है तो इस मिसइंफॉर्मेशन, इन मिथ्स को भी हम आज एड्रेस करेंगे। लेकिन एक बात जो हम शुरू में कह रहे थे कि ब्रेस्ट कैंसर को तस्वुर किया जाता है कि ये सिर्फ ख़वातीन को लाहक होने वाला मर्ज़ है। एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ही इज़ बिन अ पार्ट ऑफ द फॉरेन सर्विस इन पाकिस्तान, हैज़ सर्व्ड इन द डिप्लोमेटिक मिशंस ऑफ पाकिस्तान टू US and Netherlands and has acquired what is considered to be a rarity कि एक मर्द होते हुए a male breast cancer affectee। So इनसे पूछेंगे कि इनकी जर्नी ये कैसी रही और सबसे पहले इनको पता कैसे चला and what kind of treatment and diagnosis and of course support did he get from the people. So Azaz Saab, please share your story with us. You want me to speak in English or Urdu? You are bilingual, so you may choose any one of them. All right, okay. But my first word must be that of commendation to Rabta and to Begum Sahiba for creating this awareness. And I do agree with Dr. Aisha that this telephonic message was an amazing improvement over the last few years. I've always been participating in many such programs, but this year I can see a bonanza, which is commendable. I also want to commend Bolani Sahib, his Begum Sahiba, and also the entire Serena team
for launching this public diplomacy, because when I was in the foreign ministry, I remember we almost started together, but he has left all of us behind in not only public diplomacy, but various facets of it, like cultural diplomacy, mountaineering, and so many other facets of it. So congratulations to you and to your team for that. How did I find out that there is something known as male breast cancer? It was about 7 years ago. मैं इस तरह खेल के आया तो मुझे यहाँ पे अपनी लेफ्ट ब्रेस्ट पे एक छोटी सी ट्यूमर नजर आई। तो मैंने जिस डॉक्टर को दिखाई वो मेरे जितना ही लाइक था इस मामले में, तो उसने कहा ये तो एलर्जी है, एंटी एलर्जी खाइए, जाइए जाके सो जाइए घर में, कोई मसला नहीं। तो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते गुजर गए तो मैंने देखा कि इट वॉज ग्रोइंग। Then I got worried, so I decided to change the doctor and went to somebody else. That somebody else made a fine needle test to find out whether it was malignant or not. 2 दिन लगे उसके नतीजा आने में। तो मैं दफ्तर में बैठा था तो वो पहले वाले डॉक्टर साहब को पहले मुझसे पता चल गया नतीजा कि ये मैलिग्नेंट है। वो भागे भागे आए मेरे पास, आके कहते हैं अभी उठे और चले डॉक्टर के पास। तो मैंने कहा कि भाई देखो, मुझे अंदाजा है कि तुम मुझसे क्या छुपाना चाह रहे हो, लेकिन मैंने एक जगह मैंने एक लेक्चर देना है, वो मैं लेक्चर दूंगा पहले। वो कहता आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अच्छा, मैं दिल में क्या सोच रहा था? दिल में मुझे ये था कि मुझे अगर ये मुझे अंदाजा तो हो गया था कि मुझे ये डिजीज, मुझे ये नहीं पता था ये मेल ब्रेस्ट कैंसर है, सिर्फ ये पता चला था कि कैंसर है ऑफ सम सॉर्ट। तो मैंने कहा कि ये तो इसको शिकस्त देनी है अपने जहन में। और आज पहला दिन है तो कहते हैं गुरबे कुश्तन रूज़े अव्वल। तो मैंने कहा कि आज ये मैं लेक्चर दूंगा 1.5-2 घंटे, और मैं देखता हूँ कि मैं अपने आप पे जहन अपना उस तरफ मरकूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैं गया, डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर साहब को मैंने कहा, बड़े अच्छे थे, मैंने कहा जी आप जरा मुझे सारा बताइए, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं कि ये कैंसर किस बला का नाम है। कभी सोचता ही नहीं इंसान। तो उसने अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट की साइट खोली एंड ही शोड मी एंड टोल्ड मी एवरीथिंग। मैं जैसे ऐसे शांत हो गया कि होगा, मतलब चीजें होती हैं, थिंग्स हैपन, एंड वी वेंट थ्रू ऑल दी स्टेजेस। पैगाम मैं ये देना चाहता था, मैंने बाहर भी आपका दिया है कि अर्ली डिटेक्शन वाकई मदद देती है। देखिए ना, 1 महीने की गफलत से मेरा कैंसर स्टेज 1 से स्टेज 2 पे पहुंच गया, सिर्फ 1 महीने, जिसकी वजह से मुझे 8 साइकिल्स ऑफ कीमो करने पड़े, जो शायद 1 या 2 करने पड़ते। तो एक तो ये अर्ली डिटेक्शन जो है, इसमें शर्म नहीं है, चेक करें। अब दूसरा पैगाम इससे ये मुंसलिक है कि अगर कोई ये समझता है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ औरतों को होता है, तो जिस तरह सिद्रा फरमा रही थी, मैं बताना चाहता हूं कि मर्दों को भी होता है। बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन बड़ा मोजी है, क्योंकि टिश्यू नहीं है, इट हिट्स योर रिब्स एंड एक्चुअली इट वेंट इनटू माय रिब्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये हर एक को ध्यान, अगर आप अपने जिस्म पे, मर्द भी अपने जिस्म पे कोई अनयूजुअल ग्रोथ देखें, कोई ऐसी चीज देखें कहीं पे भी, किसी जगह पे भी, टेक इट सीरियसली, टेक इट सीरियसली। बिल्कुल, और ये आपका बड़ा की मैसेज है। और इसमें क्योंकि कैंसर की जब भी बात की जाती है तो स्टेजेस का जिक्र जरूर आता है कि एट व्हाट स्टेज हैज इट बीन डिटेक्टेड। और जब हम कह रहे हैं कि अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइव्स, इट इज वेरी मच क्योरेबल। डॉक्टर आबदा, आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस क्वेश्चन टू यू कि हाउ डू वी डिफाइन these phases, these stages, और किस तरह पता लगे कि आप कौन सी स्टेज में, और उसकी फिर क्योरेबिलिटी, जैसे उन्होंने कहा कि स्टेज 1 से जब स्टेज 2 पे चला गया सो द ट्रीटमेंट हैड टू बी मच मोर इंटेंसिव। ये जरा लोगों के लिए वाजे करें, एलाबोरेट करें कि हर स्टेज पे किस किस्म के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और कितना ये मूजी होता है या कितना इंटेंस हो जाता है विद टाइम। स्टेजिंग का प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और अभी जो लेटेस्ट एडिशन आया है इसका, जिसको हम AJCC 8th एडिशन कहते हैं, उसके हिसाब से ये मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो गया है। तो मेरी एक आम जो ले पर्सन है उनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि ख़ुद इस चीज़ में ना पड़ें कि वो कौन सी स्टेज पे हैं। बेहतर ये है कि जैसे कोई मसला नज़र आए डॉक्टर के पास आएँ, ताकि इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए।
स्टेज का वास्ता होता है ट्यूमर के साइज से, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट से, एक्सटेंट ऑफ डिजीज से, ट्यूमर रिसेप्टर से. अब ये सारा कुछ ही सुन के आई एम श्योर मोस्ट पीपल आर लॉस्ट. सो द मैसेज इज दैट द अर्लियर इट इज डिटेक्टेड, द लोअर द स्टेज, the shorter the treatment, the less expensive the treatment and the better the outcome. यानी जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना बेहतरीन इलाज और लाइफ को सेव करने का अर्ली चांस. डिटेक्शन के लिए जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो आपके पास मैमोग्राफ्स मौजूद हैं, इसके अलावा आपके पास अल्ट्रासाउंड है, लेकिन सबसे मौसर और जिसको सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है इज सेल्फ एग्जामिनेशन. डॉक्टर आयशा, इसकी अहमियत और इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए, क्योंकि इसमें भी वही खदशात हैं कि द मोमेंट यू डिटेक्ट एन अबनॉर्मल ग्रोथ या आपको कोई गुठली या कोई सिस्ट महसूस होती है तो लोग डर जाते हैं, उसको छुपाते हैं और समझते हैं कि शायद उसको छुपाना बेहतर है. इसके बारे में बताइए. जैसे स्क्रीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं. सो सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसे वसाइल में दूध है एंड मैडम, सो आई थिंक दैट शुड बी मैंडेटरी. वो तो आपके खुद बस में है. तो एवरी मंथ एटलीस्ट अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना, और ताकि आप अपनी बॉडी से अवेयर हो और ज़रा भी चेंज हो तो आपको फील हो. अंटिल यू कीप ऑन डूइंग इट तो देन यू आर नॉट अवेयर अदरवाइज. देन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ज़रा भी कुछ फील हो तो मैं तो हेल्थ प्रोफेशनल लफ्ज़ यूज़ करती हूँ, विच कैन बी अ डॉक्टर, विच कैन बी अ ट्रेन्ड नर्स, और इवन द लेडी हेल्थ वर्कर्स एज वी आर ट्राइंग टू ट्रेन देम टू ओवरकम दिस नीड. And then of course the screening mammography or ultrasound. 40 years से अगर आप 40 या उससे ऊपर हैं, then a screening mammogram. Yearly American College की recommendation है, and we also follow that because we have the highest rate in Asia. And 40 years और उससे कम, so then of course an ultrasound to further assess, and moving on to a biopsy and then to the surgeon, जैसे ये है. So I think इसमें जो है ना, जैसे मैडम ने भी कहा कि सेल्फ, हमें इतना ही मैसेज करना चाहिए कि सेल्फ एग्जामिनेशन तो एक नॉर्म हो जाना चाहिए. जैसे सुबह उठते हैं और दांत साफ करते हैं, वी वॉश आवर फेस, वी ब्रश आवर टीथ. आई थिंक दैट शुड बी द वे इट इज, एंड दिस इज फॉर ऑल द यंग गर्ल्स, माय अदर काउंटरपार्ट्स, एवरीवन. इट शुड जस्ट बी पार्ट ऑफ योर हैबिट. I think this is such an important message, और इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए, because this is a gathering of people who are compassionate, people who are would like to learn more about this disease. तो आपको बताते चलें कि बाहर आपने नोटिस किया होगा there are 2 offerings available. Maroof is a private hospital, and what they are offering is state of the art प्राइवेट मेमोग्राफी ऑफर्स, और आप उनके जो टीम यहाँ पे मौजूद है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट मोर अबाउट इट. इसके अलावा PIMS, दैट इज ऑल्सो बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर आयशा हेयर. वी हैव 5 क्वालिफाइड डॉक्टर्स फ्रॉम PIMS मैनिंग अ स्टॉल राइट आउटसाइड, और ये भी आपको तमाम इस तरह की कोई क्वेरीज हैं, अगर कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटिंग टू योर सेल्फ एंड अबाउट सेल्फ एग्जामिनेशन, उसका तरीका क्या होता है वो बता सकते हैं. यू कैन कंसल्ट देम देयर राइट आउटसाइड दिस हॉल. इसके अलावा जो लोग हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अगर आपके भी कोई सवालात हैं, आप हमें कमेंट्स में सवाल लिखिए. माय टीम इज गोइंग टू डिटेक्ट दैट एंड गेट इट अक्रॉस टू मी. बेगम साहबा, जब भी हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, अगर खुदा न खासा किसी की फ्रेंड्स में, फैमिली में, कहीं करीबी हल्के में किसी को ये अगर वार होता है इस डिजीज़ का, तो वो ऑटोमेटिकली एडवोकेट बन जाता है, या अगर वो खुद कॉम्बैट करके एज अ सर्वाइवर, एज अ विक्टर बाहर निकलता है, तो दे पुट देयर फोर्स बिहाइंड इट. आई एम श्योर आपसे भी कई लोगों ने ये सवाल किया होगा कि व्हाई इज दिस सब्जेक्ट, दिस डिजीज एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इट सो क्लोज टू योर हार्ट. सो वीड लाइक टू नो दैट. आप जैसे आप सब बता रहे हैं, दिस इज द फैक्ट कि पाकिस्तान में द हाईएस्ट डेथ रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो इट्स गॉट मी कि वी हैव टू डू समथिंग. हाँ, इट्स जस्ट अ वेरी कॉमन थिंग. इफ इट्स क्योरेबल तो व्हाई नॉट गिव देम सम अवेयरनेस. ये ऐसी मुझे कोई ख़ास चीज़ नहीं हुई, बट आई कैन सी अराउंड माई सेल्फ, मेरी फ्रेंड्स, बहनें, और यंग में उनको डिटेक्ट हो रहा है. तो दैट्स ओनली आई थॉट कि इस पे हमें काम ज़रूर करना चाहिए. मैं ऑलवेज आई डू सम काइंड ऑफ चैरिटी, अपनी ज़िंदगी भर करती रही. तो और स्पेशली फॉर फीमेल हमें कुछ ना कुछ काम करना भी चाहिए कि हम इनके लिए, और जब इतना 50% पॉपुलेशन हमारी ख़वातीन की है फीमेल, तो उनको हम क्यों नहीं केयर दे रहे हैं, और इनकी अहमियत देना चाहिए. उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको वी शुड स्टैंड विद देम कि इट्स अ क्योरेबल डे, इट्स अ स्टिग्मा, मगर आप करें
और आगे आएं, और उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जैसा आप लोग देख रहे हैं कि 2 साल में थोड़ा सा कहीं तो हम आगे बढ़े हैं, और धीरे धीरे कतरा कतरा जैसा समंदर बनता है इंशाअल्लाह सब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसी से मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूं कि हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका कॉल सेंटर भी बनाएं, ताकि कॉल सेंटर बने जो हमारे स्टिग्मा और ये सारा है, हमारी बहनें बात नहीं कर पाती, दे कांट टू फील शाय कि हॉस्पिटल जाएं या किसी फैमिली में डिस्कस करें, तो हम कॉल सेंटर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वी शुड ओपन अप अ कॉल सेंटर दो दे कैन प्राइवेटली कॉल देम एंड डिस्कस देयर इश्यूज। तो इस तरह बहुत सारे एनजीओस हमारे साथ काम कर रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि डॉक्टर्स तो दे आर ऑलवेज हैप्पी टू वर्क विद अस क्योंकि इतना अच्छा कॉज है, मगर एनजीओस बहुत हमारे साथ सब मिलके कर रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे व्हेन इट कम्स टू द फैमिली एंड द कल्चरल बैरियर्स? उसमें एक चीज़ जिसकी वजह से खामोश हो जाते हैं, ट्रीटमेंट, उसका महंगा होना, उसकी तकलीफ, वो सब अपनी जगह, लेकिन एक बहुत बड़ा खौफ हमारे यहाँ बच्चियों को, ख़वातीन को ये होता है कि अगर ये इस डिज़ीज़ का की तशख़ीस हो गई, डायग्नोसिस हो गया, तो हस्बैंड छोड़ ना दे, फैमिली छोड़ ना दे। और कई अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंसेस ऐसे होते भी हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू बीन मैरिड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपके बच्चे हैं, आपका एक पूरा घर है, आपको लोग छोड़ देते हैं। What would your message be to women and girls who have this fear looming in their heads? Begum Sahib, if you'd like to. For me? Okay, I thought maybe We'd you asked love me. for you to, Okay. and then of course the other ladies will also. अच्छा, comment. नहीं, मेरा ख्याल इसीलिए उनके हम साथ खड़े रहे हैं। अपनी बहनों को मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल इसमें कोई शर्म, कोई डरने की बात नहीं है। और अब जैसे पता चल रहा है कि ये तो मेल में भी है, तो इट्स नॉट ओनली फॉर फीमेल, ये तो मेल में भी है, तो वाई। और इंशाअल्लाह है ज़रूर, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लोअर देही इलाकों में, रूरल एरियाज़ में ये प्रॉब्लम्स हैं, मगर इंशाअल्लाह मेरा ख्याल हम लोग इससे आगे आएंगे और इस स्टिग्मा को, इस टैबू को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, बिफोर आई टर्न टू द लेडीज, एजाज साहब आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी। ये बड़ी एक तल्ख हकीकत है हमारे माशरे की कि ख़वातीन क्योंकि अपनी फेमिनिटी से, अपनी एक पूरे तशख़्ख़ुस से अपनी बॉडी को जोड़ती हैं, और जाहिर सी बात है कि इतना अहम आज़ा है उनके लिए, क्या आप समझते हैं कि उनको लगता है कि द लाइफ हैज़ एंडेड एंड परहैप्स देयर हस्बैंड विल प्रोबेबली लीव देम? इस खौफ से जो बैटल कर रही हैं, उनको आप क्या कहेंगे, बीइंग अ सर्वाइवर, बीइंग अ विक्टर योरसेल्फ? मैं नेचुरली इस फील्ड में तो इतना मुझे तजुर्बा नहीं है कि अगर किसी को हो जाए, खातून को, तो समाजी दबाव उस पर बढ़ जाता है। मैं समझता हूँ कि कम से कम शहरी इलाकों में अब ये सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ? मैंने अपना इलाज करवाया है नूरी हॉस्पिटल से। ये एटॉमिक एनर्जी की 18 में से एक अस्पताल है, डॉक्टर आयशा उसमें रेगुलरली आती है, और वहाँ पे को तकरीबन 1 मिलियन के करीब पाकिस्तान के इलाज होते हैं, जिनमें से ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है, और उनके साथ वो मेल अटेंडेंट्स भी आते हैं, और उन्होंने एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई है जिसमें वो ठहरते हैं। मैं हकीकत आपको बताऊं कि मुझे आज थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा हैरत हुई है कि इसको ये समझा जा रहा है कि एक माशरे में एक समाजी दबाव की कैफियत ली जाता है। जिस तरीके से आप पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए आहिस्ता आहिस्ता जब आप निकलते थे तो आपके मर्द भी शामिल हो जाते थे, इसी तरह इसमें भी हो जाएंगे। सिर्फ जुर्रत लेने की बात है और पैगाम देने की बात है। शहरी इलाकों में मैं नहीं समझता कि अब ये मसला इतना संगीन है। मुमकिन है देहाती इलाकों में अभी भी ये मसला हो, शहरी इलाकों में तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस अब फैल रही है। मैंने खुद ये जो मुख्तलिफ स्टॉल्स पे, इवन फॉरेन ऑफिस में जो वो एनुअल फेयर हो रहा था, उसमें भी मैंने देखा स्टॉल्स में वो छोटे छोटे लीफलेट्स हैं, छोटे छोटे लीफलेट्स, वो फैलाने चाहिए, राब्ता भी कर सकती, सारे भी कर सकते हैं। और उसमें मर्दों की एजुकेशन औरतों की एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल, ताकि वो अगर अवेयर हो जाए इस बात से तो फिर उनको समझ आ जाएगी कि ये एक आम बीमारी है। इसीलिए मैं क्यों खुद आया हूँ, बुलानी साहब और मैं गोल्फ खेल रहे थे तो वहाँ मैंने इनसे जिक्र किया कि मुझे इन्विटेशन आई है,
तो मैं इसलिए आगे बढ़ के आया कि ये बताने के लिए कि ये सिर्फ औरतों का मसला नहीं है। And to take the stigma away as well. जिस And तरह take कि हमने the पहले stigma कहा away. कि जैसे ही आपको बीमारी की तशखीस होती है, इसका खुदा न खासा है, ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपके पास बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन लेट्स टेक अ फ्यू मिथ्स वेरी क्विकली, और उसके बाद विल बी ओपनिंग द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस एज वेल। डॉक्टर आयशा, वन ऑफ द कॉमन मिथ्स, लोग समझते हैं इलाज बहुत महंगा है। अगर पता चल गया कि कैंसर है, इसके बाद भी इलाज नहीं कराते, ये सोच के कि ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, ये तशखीस तो हो, वी गॉट अ रेफरल मैकेनिज्म। आपके पास अगर एक नाइडस हो जाता है, फिर आप रेफर कर देते हैं। इट्स नेक्स्ट डोर ऑल्सो, जैसे सर ने कहा, इट कैन बी फॉर रेडियोथेरेपी टू नूरी, इट कैन बी फॉर सर्जरी टू पिम्स, कीमोथेरेपी टू पिम्स, बैतुल माल है, और बहुत से इस तरह है। वी ट्राइंग के जो है गवर्नमेंट का इंश्योरेंस कार्ड, अगर वो भी मैडम, वो भी प्लीज, वो भी अगर बिल्कुल जी, एहसास प्रोग्राम एंड हेल्थ कार्ड, बिल्कुल, उसकी भी बहुत फैसिलिटीज हो रही So हैं। this will definitely go a long way in Yes. subsidizing the treatment and rendering financial support to people. इसके अलावा, I was very happy to learn that last year Begum Sahiba was also there. Now the insurance covers that are being offered, जी। उसमें आपको cancer specific and breast cancer specific covers भी मिल रहे हैं. So it's all about prioritizing it. Dr. Abda, other common myths are going for treatment for breast cancer means losing my breast. How are we doing on the myth front for that? Is this a lie? Is this true? What's your take? So again, I think it would take me back once again to the stage of the cancer. उसको आम जबान में मैं इस तरह समझाऊंगी, अक्सर मरीजों से भी कहते हैं कि अगर एक तरबूज को आप इमेजिन करें, अगर तरबूज में से आप एक छोटा सा बेर के साइज का पीस निकालेंगे तो तरबूज जो है बाकी प्रिजर्व रहेगा। अगर तरबूज के अंदर से आप खरबूजे के साइज का पीस निकालेंगे तो वो तरबूज डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो जितना छोटा ट्यूमर होगा उसको आप खूबसूरती से ब्रेस्ट में से निकाल के और बकाया ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। तो अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट भी बच जाएगा और जान भी बच जाएगी। अगर ब्रेस्ट कैंसर एडवांस हो जाता है और मेस्टेक्टमी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पूरे ब्रेस्ट को निकालने की, तो उसमें भी रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शंस मौजूद हैं। प्लास्टिक सर्जन के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं और एक नया ब्रेस्ट बन जाता है उसी बेहोशी के दौरान अक्सर, जिसमें ब्रेस्ट निकलता है। तो जब औरत बेहोशी से उठती है ऑपरेशन के बाद, तो उसको एक सेकंड को भी ये एहसास नहीं होता कि वो ब्रेस्ट के बगैर है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से होती हैं। और फिर तीसरा ऑप्शन ये कि अगर औरत ना ब्रेस्ट बनवाना चाहे दोबारा, तो उसमें इस किस्म के अंदर पहनने के कपड़े मिलते हैं, ऐसी स्पेशल ब्राज हैं जिसके अंदर आप प्रोस्थेसिस डाल सकते हैं, ताकि जब पब्लिक में औरत जाए तो किसी को एहसास ना हो कि उसकी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है। सही। और अब क्योंकि यंगर women are also getting breast cancer, unfortunately, डॉक्टर आयशा, एक मिथ ये भी है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कराया या ट्रीटमेंट कराया तो आपकी फर्टिलिटी या फिर माँ बनने की कुव्वत खत्म हो जाती है। How true is that? That is not true. The days when the oophorectomies and other such things were done for breast cancer is way past. तो ऐसी कोई बात नहीं है। You just come early, have a lumpectomy done, जैसे आपदा ने कहा। The later stage, of course, is a mastectomy, but with the prosthesis and all that. तो ऐसी कोई बात नहीं जी। During the treatment, of course, the menopause occurs. They come to us for the repeated ultrasounds and follow-up imaging. उस वक्त वो हो जाता है, but then they become fine, they conceive, they've got children, माशाल्लाह। तो ऐसी कोई नहीं है। So this is very. And if somebody is diagnosed, Dr. Abda, during their pregnancy, फिर क्या होता है? उस वक्त इलाज मुमकिन है, नहीं मुमकिन है? प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो अक्सर अग्रेसिव होता है। तो उसको तो और भी ज़्यादा रीज़न है डिले ना करने का। तो अगर कोई भी चेंज ब्रेस्ट में नज़र आए तो ये ना सोचा जाए कि ये दूध की गुठली है और उसको फौरी तौर पे इलाज कराना चाहिए। आप फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की बात करें जी, उसमें आई वुड लाइक टू मेक वन मोर कमेंट कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के ऑप्शंस इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। और अगर कोई यंग लड़की है जिसकी अभी फैमिली स्टार्ट नहीं हुई है या कंप्लीट नहीं है, तो उसमें बाज़ दवाएं ऐसी दी जाती हैं जो कि कीमोथेरेपी के असर से ओवरीज को बचाने में काम आती हैं। या फिर कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनसे कि आप एग्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो अंडेदानी होती है जिसमें अंडे के साथ एक औरत पैदा होती है, उसमें से कीमो का असर होने से पहले कुछ अंडों को उसमें से सिलेक्टिवली हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो उनको बचा लिया जाता है ताकि कीमो के बाद
फिर वो औरत प्रेग्नेंट होने की सख्त रखे। ठीक है डॉक्टर आयशा, क्वालिटी ऑफ लाइफ वंस द ट्रीटमेंट इज ओवर, एक जैसा कॉमनली बात की जाती है रेडिएशन की भी, कीमोथेरेपी की, खवातीन की निस्वानियत, उनका हुस्न, जाहिर सी बात है बालों से, everything that you attach to your identity, people feel that in this battle you lose it all. Does it come back or what's life It after comes cancer back, dies? believe me, it's all transient. The hair comes back. It might not be as long. चले, if there अच्छा, is मैं somebody, जब बात की things करती हूँ like मुझे बड़ा that. शैलो भी लगता है, क्योंकि एक तरफ एक जिंदगी बचाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ ये बड़ी शैलो, बड़ी वेन, बड़ी सुपरफिशियल बातें, बट एट द सेम टाइम दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू women and their families. Believe me, it's not shallow. It is. You see, we're all women, and we want to look nice. I think men want to look nice. Why not? It's a natural human urge. बाल भी वापस आ जाते हैं. Your skin gets the glow back. You become fine. But wait, 6 months, 1 year. 1 year is the toughest part, and the willpower. So you need that willpower to fight it out, and you become fine. Believe me, it is all inside you. It's in your willpower. So that's why I think the counseling part, groups, like abroad also you've got your groups, you need groups, people who've gone through this, वो time पे एक दूसरे से बात करके they pull each other through. So that I think is a very This big is so thing. important, like other than raising awareness, groups. treatment plans, bringing the cost Ji. down, setting up hospitals and more healthcare, I think the emotional counseling element is extremely important. मैं ये भी कहने वाली थी कि मेरे ख्याल खुद को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है और फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती। जितनी स्ट्रांग फैमिली सपोर्ट होगी, जैसे डॉक्टर्स भी ऑलवेज एडवाइस की, जितनी फैमिली सपोर्ट होगी उतना मेरे ख्याल में जल्दी रिकवरी भी होती है और उसको फेस करने की सकत भी होती है, हिम्मत भी होती है और मेरा ख्याल अच्छी तरह वो जल्दी मेरा आई फील कि अगर आप स्ट्रांगली करो तो वो रिकवरी भी जल्दी होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, नाउ आईड लाइक टू ओपन द फ्लोर, लेकिन एक तल्ख और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल सवाल मुझे लगता है वो मैंने बचा के रखा हुआ था। दिस इज़ रादर बोल्ड, लेकिन आपको हैरानगी होगी कि हमारे यहाँ कई तबकात में ये बात की जाती है। Dr. Abda, we've discussed it on our show earlier on as well. Unfortunately, ख़वातीन इस मर्ज़ को या किसी भी डिस्कवरी को छुपाती इसलिए भी हैं कि उनको लगता है कि ये बात डायरेक्टली उनके किरदार से मंसूब कर दी जाती है। यानी अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में कई ऐसे तबके मौजूद हैं जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस को एक औरत की बद किरदारी का सबूत मान लिया जाता है कि मे बी शी इज़ बिन प्रोमिस्कुअस, मे बी शी इज़ बिन विद मल्टीपल पार्टनर्स। इसकी साइंटिफिक वैलिडेशन कोई है, इसके बारे में ज़रूर बात कीजिए। इसमें जी साइंटिफिक एविडेंस इज ज़ीरो। ठीक है, इसका कोई बद किरदारी से वास्ता नहीं है। कैंसर जो है आप उसको ऐसे सोचें कि खलिया यानी सेल जो है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी हो गई है, वो चलते चलते पटरी पे से उतर गया है और सही काम करने की जगह उसने कैंसर सेल बनाना शुरू कर दिया है। तो अगर इसको आम जबान में सोचें तो आप ये कह सकते हैं खुदा की तरफ से है। 90% कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर, उसका कोई रीज़न नहीं होता। तकरीबन 10% ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है कि जो जीन्स की वजह से या जीन्स की वजह से हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जो कि आपको विरसे में अपनी फैमिली से मिला है। तो बाज़ औक़ात औरतें ये भी सोचती हैं कि हमारी फैमिली में क्योंकि किसी को कैंसर नहीं हुआ है और उनको कोई मसला नज़र भी आता है तो वो इग्नोर करती हैं ये सोच के कि ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है बावजूद इसके कि फैमिली हिस्ट्री नहीं है। सही। डॉक्टर आयशा, बिफोर वी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, ज़रा मैं चाहती थी कि हमारी अपनी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी हो। अगर किसी खातून को ब्रेस्ट कैंसर है तो ऑफ कोर्स वी सच अ क्लोजनेस सोसाइटी, हम चाहते हैं कि जाएं, उनसे मिलें, उनकी तिमारदारी करें। क्या ऐसे सवाल हैं जो नहीं करने चाहिए और आपका खुद रवैया क्या होना चाहिए बिफोर अ पेशेंट हु हैज़ ब्रेस्ट कैंसर? बस आप हमें पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। होप, आई थिंक होप इज द बिगेस्ट थिंग। होप इन इलाज हो सकता है, होप यू विल बी बैक टू नॉर्मल, होप कि अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल है यू कैन हेल्प देम आउट। देयर सो मेनी वेज वन कैन हेल्प देम आउट। फिलैंथ्रोपी अलग है एंड लाइक वी डिस्कस अदर मेजर्स। सो आई थिंक माय थिंग वुड बी to meet them, and it has to be interactive and a lot of interaction. I think they need more, they need to open out and talk more. We need a lot of warmth, very encouraging Yes, words, a lot of empathy. kind words. I think generally भी अगर हमारे यहाँ compassion और kindness बढ़ हाँ, जाए, बस हम वो। बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। With this, ladies and gentlemen, we'd like to open the floor for questions. If you have questions for our panel, Ji, we have one. Yes, we'll just direct the mic to you. Ji. I don't need to stand up.
It would be great if you stand up, we'll get a better view for our social media viewers. You see, I am the daughter of a breast cancer survivor. My mother had breast cancer when she was 54. Now she's, mashallah, 84. MashaAllah. And she's still living in Islamabad. After that, she has survived a massive heart attack coming from my Nana's side. Then, about 2 years back, my eldest brother, who was with the World Bank, he had the malignancy of the food pipe. He was on crushed ice only. She saw him and she has survived. And I wanted her to come, but she said, but you know, मैं तो इससे गुजर चुकी हूँ, जाके तुम बता दो. Obviously, she tilts a bit, but she lives in the upper portion of my brother's house who's passed away because she feels she is the granny. And my brother has left behind 3 daughters. One is about to get married soon. So, you know, she's busy with her sewing, she is mentally very, very, very strong. Yeah, That's my message. I think we need more women like that, and they Yes. must be celebrated. That's what I keep saying, that Very this right. journey introduces us to such strong women. Strong. Let's open the floor for more questions, and also my team, if they can send me the questions that are being sent online as well. Yes, ma'am. Assalamu alaikum everyone. Actually, my question is from Dr. Saiba. She said कि जो patients होते हैं उनमें, especially for the younger girls, उसमें fertility preservation की options होती हैं, but कुछ areas ऐसे होते हैं जिधर नहीं लड़कियां इस तरह निकलती हैं बाहर and उनको इजाज़त नहीं होती है. So can we expect राब्ता टीम कि वो in future ऐसी facility provide करें कि जो ऐसे इलाकों से लोग आते हैं जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी इस चीज़ के लिए शर्म महसूस ना करें. Well, thank you so much for that question. I think on behalf of Rabta, we're more a connector, and we bring you the best of experts and the people who can maybe guide you better. This is not really our area of expertise, but however we can support